Hello students, welcome to my channel. In this lecture, we will derive equations of uniformly accelerated motion by using the analytical method. Students, what we have three important parameters of mechanics. First is velocity, second is time, and third is position. Okay? So first relation is between velocity and time, and that is called as velocity time relation, and this is what this is. V is equal to U plus AT. So we will derive first relation. Suppose we have an object starts its motion from the point O, let the time is 0 at the point O, and after the time t1, suppose it reaches to a point A, and after time t2 it reaches to a new point B. Let the distance covered in the time t1 is x1 and the distance covered in the time t2 is x2. Suppose v1 is the velocity at the point A and v2 is the velocity at the point B. Because we have taken uniformly accelerated motion, therefore the acceleration of the object is constant because we have uniformly accelerated motion. So what we have to do, firstly we will define the acceleration between the point A and B. Clear? So what is the acceleration? Acceleration is change in velocity divided by बच्चों क्या है? Change in time. अगर हम बात करें from the point A, what is the velocity? Velocity is v1 और B point के लिए बच्चों velocity है v2. So what is the velocity? This is v2 minus v1, and what is the change in time? This is t1 is the time for the point A, t2 time for the point B. So what is the change? t2 minus t1. This is t2 minus t1. So now we will take the cross multiplication. So we have v2 minus v1 is simply a t2 minus t1. Now we will suppose here one condition. Let point A is taken as the origin of time. We will suppose this point A as the origin of time. It means that the time at the point A is 0. So what is the time at the point A? That is t1. So we will take t1 is 0. और बच्चों t2 टाइम को हम क्या ले लेंगे? This is the time t, where t is the time from the point A to the point B. Clear? And also बच्चों v1 is what? Is the velocity at the point A. अगर A point हमारा origin of time है तो ये हमारा क्या हो गया? Initial point, और B हमारा हो गया final point. तो v1 को क्या हम ले लेंगे? This is u, which is the initial velocity, and v2 को हम लिख लेंगे बच्चों v, which is the final velocity, and we will put all these notations in this equation. So what we have v minus u is a t minus 0, और हमारा रिलेशन बच्चों क्या बना? v minus u is equal to at, तो रिलेशन बना v is equal to u plus at. Clear? So this is our first relation, which is velocity time relation. Clear? So now students, we will derive the second relation. That relation is between position and time, and that is called as position time relation. Clear? And the formulation for this relation is S is equal to ut plus half at square. So for the derivation of this result, what we will take, we will suppose what is V average.
V average is what? This is the change in position. We will use the definition of this V average by change in time. अगर बच्चों हम देखें from the point A to the point B, what is the change in position? A point O से कितना दूर है? x1. B point O से कितना दूर है? x2. So what is the displacement between A and B? What is the change in position between A and B? This is बच्चों x2 minus x1. So the change in position is what? x2 minus x1. So V average is what? This is x2 minus x1 divided by time के इंटरवल कितना है बच्चों? t2 minus t1. तो हमारा x2 minus x1, this is what? V average into t2 minus t1. ठीक है बच्चों. और V average is what? V average is, अगर हमने A पॉइंट पे वेलोसिटी ले ली उसकी v1 और B पॉइंट पे जो वेलोसिटी है that is v2, तो what is V average? This is the average of v1 and v2. So V average कितना होगा बच्चों? v1 plus v2 by 2. Clear? Also we will put this expression in this equation. तो result क्या बनेगा हमारा? x2 minus x1 which is equal to v1 plus v2 by 2 into t2 minus t1. ठीक है. और एक चीज बच्चों हमने पिछले आर्टिकल में अभी पढ़ी थी, v2 is what? v2 is v1 plus a t2 minus t1. तो इस इक्वेशन को भी हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो अगर मैं इस इक्वेशन को भी इस इक्वेशन में रख दूं, ऊपर वाली में रख दूं ऐसे, तो क्या बनेगा बच्चों? x2 minus x1 दिस इज इक्वल टू v1 तो हमारे पास पहले ही है, प्लस v2 की जगह पे मैं ये रख देता हूँ, दिस इज v1 प्लस a t2 minus t1 डिवाइडेड बाई 2 और इनटू क्या है बच्चों? t2 minus t1. So if we simplify this equation, तो बच्चों क्या बनेगा हमारा? This is what? v1 plus v1. This is 2v1 divided by 2, ये बनेगा simple v1 और multiplied by t2 minus t1. तो फॉर्मुलेशन बनेगी x2 minus x1. This is equal to v1 into t2 minus t1. और ये नेक्स्ट फैक्टर क्या है बच्चों? a by 2 into t2 minus t1 दो बार आ रहा है, तो ये बनेगा a by 2 t2 minus t1 स्क्वायर. क्लियर? तो ये फॉर्मुलेशन वैसे तो हमारी तैयार हो गई है, बट इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे. अगेन लेट t1 सॉरी अगेन सपोज a point as the origin of time. तो बच्चों हमारा t1 कितना हो गया? t1 हमारा हो गया 0 और t2 हमारा कितना हो गया? दैट इज द t. t is again the time from the point A to the point B. ठीक है. और v1 को हम क्या लेंगे? दिस इज u which is our initial velocity and x2 minus x1 बच्चों क्या है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज सिंपली s. ठीक है. तो इस रिलेशन में बच्चों हम सभी वैल्यूज को फिल कर देंगे, तो आंसर हमारा आएगा दिस इज s इज इक्वल टू u t minus 0 plus 1 by 2 into a t minus 0 whole square. क्लियर? तो अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं तो बच्चों ये हमारा रिजल्ट क्या बना? दिस इज व्हाट? s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन. ठीक है. और इसके बाद बच्चों हम डिराइव करेंगे थर्ड रिलेशन. हमारा थर्ड रिलेशन किसके बीच होगा? पहले हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच बनाया, अब टाइम एंड पोजीशन के बीच. नेक्स्ट इज वेलोसिटी एंड पोजीशन के बीच. ठीक है. सो थर्ड रिलेशन इज व्हाट? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. और बच्चों ये रिलेशन है क्या? दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as. ठीक है. तो अगर हम इस रिलेशन को बच्चों डिराइव करेंगे
तो हम अगेन वी एवरेज की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे इसको. वी एवरेज इज व्हाट, अभी हमने डिफाइन किया था, दैट इज द चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम. सो व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन? This is x2 minus x1, and what is the change in time? This is t2 minus t1. Clear? So what is x2 minus x1? This is v average into t2 minus t1. ठीक है बच्चों, और v average हमने अभी लिखा था. This is what? This is what? This is v1 plus v2 by 2 into t2 minus t1. साइड में लिख दो, v average is what? This is v1 plus v2 by 2. Clear? So now, but in this case हमें टाइम बच्चों नहीं चाहिए यहाँ पे, बट हमारे पास क्या आ रहा है? टाइम. तो इसका मतलब हम टाइम को क्या करेंगे? किसी डेफिनेशन से इसको रिमूव करेंगे. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखें, एक्सेलरेशन इज व्हाट? A से B तक का एक्सेलरेशन इज व्हाट? द चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. सो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों हमारा? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1. ठीक है, तो हमारा t2 माइनस t1 क्या आया? क्योंकि हमें t2 नहीं चाहिए, मतलब टाइम हमें नहीं चाहिए. सो t2 माइनस t1 इज व्हाट? दिस इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय बच्चों e. So we will put this value of a in this relation. Sorry, the value of t in this relation. So what we have? So we will get x2 minus x1. This is equal to v1 plus v2 by 2 into t2 minus t1 की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं. This is what? This is v2 minus v1 divided by e. Clear बच्चों? So now what we have? We have x2 minus x1. This is equal to, this is what? This is a plus b and this is a minus b. अगर मैं v2 यहाँ पे v2 आगे है तो इसको ऐसे लिख लूँ, this is v2 plus v1. ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूलेशन अप्लाई करेंगे. This is what? a plus b into a minus b. This is what? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर मैं कंपेयर करूं मेरे रिजल्ट से, a क्या है हमारा? v2 और b क्या है हमारा? v1. ठीक है बच्चों, दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नेगेटिव, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या बना? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2a, और बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी हैव? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. दिस इज 2a x2 माइनस x1. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया. अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों लेके जाएंगे हम. अगेन हम क्या करेंगे? ए पॉइंट को क्या ले लेंगे? ओरिजिन ऑफ टाइम. लेट ए पॉइंट बी द ओरिजिन ऑफ टाइम. हमारा ए पॉइंट अगर ओरिजिन ऑफ टाइम है तो ए पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो वहां की वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और v पॉइंट फाइनल पॉइंट है, तो वहां की वेलोसिटी हमारी फाइनल वेलोसिटी है. तो v1 को हम क्या लिखेंगे बच्चों? u लिखेंगे, और v2 को लिखेंगे हम v लिखेंगे. ठीक है, और x2 माइनस x1 इज व्हाट? दिस इज सिंपली द s डिस्प्लेसमेंट. तो इन सभी को हम यहाँ पे रख देते हैं. तो फॉर्मुलेशन बच्चों बना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो ये बच्चों हमारा थर्ड रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. क्लियर? और अगर बच्चों हम इन तीनों रिलेशंस को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो व्हाट इज द फॉर्मुलेशन इन द वेक्टर फॉर्म? तो वो भी मैं आपको बता देता हूं. इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां पे लिख देते हैं इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया? हमने तीन रिलेशन बना लिए. फर्स्ट रिलेशन था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. सेकेंड था बच्चों हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, और थर्ड था बच्चों v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये तीन रिलेशन थे. जो इन रिलेशंस में हमने सिंबल्स यूज किए हैं उनके साथ हमने वेक्टर नहीं लगाया बच्चों.
अगर वेक्टर नहीं लगाया तो वो स्केलर रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे वी यू क्या होंगे बच्चों, स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। और ये एस किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इनमें से बच्चों जो जो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं मैं उनको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो वो फिर अपने अलग से मीनिंग देंगे, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, ठीक है। मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया बच्चों, v हमारा वेलोसिटी है, ठीक है। v वैसे क्या है हमारा वेलोसिटी, पहले हमने इसको स्पीड बोला था बट ये वेक्टर क्वांटिटी में भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, तो मैंने इसको ऐसे v वेक्टर लिख लिया, ठीक है। uv हमारा इनिशियल स्पीड था तो इसका भी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी बच्चों, तो इसको भी मैंने u वेक्टर से लिख लिया, ठीक है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, बट टाइम हमारा बच्चों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है तो इसको मैंने t सिंपली ऐसे लिख लिया, ठीक है। और नेक्स्ट रिलेशन इज व्हाट, दिस इज s वेक्टर u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मुलेशन आ गया बच्चों इन द वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे अगर s हमारे पास है तो वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, बट अगर इस फॉर्म में है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और थर्ड रिलेशन बच्चों हमारा क्या बनेगा, दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट s, ठीक है। तो इसमें बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैंने वेक्टर यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दिस इज द स्क्वायर, स्क्वायर को हम जो यहाँ पे बेसिकली आएगा ये आएगा v डॉट v, ठीक है। क्योंकि हमारे पास v स्क्वायर है तो v स्क्वायर बेसिकली बच्चों क्या है, v डॉट v। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखता हूँ। अगर मैं इस चीज को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ूंगा बच्चों, दिस इज व्हाट, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन v एंड v, और वो क्या होता है, v स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा, इसमें वेक्टर सिर्फ इधर आएगा जहाँ पे हमने ए एस लिखा है। और यहाँ पे भी बच्चों हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ये हम वेक्टर्स में पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों ऑल द थ्री फॉर्मुलेशंस फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटर मोशन। इसके बाद बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। Students, now we will solve these two numericals. In the first numerical, we have a car is moving along a straight line with the velocity 30 meter per second and it comes into the rest after traveling the distance 100 meter. Clear? So what will be the diagram? Suppose we have an object, it is moving with the velocity 30 meter per second and it is moving along a straight line and it comes to rest after traveling 100 meter. Let this distance is how much? This is 100 meter. Suppose this is point A and this is point B, and the final velocity is how much? They have given the final velocity is 0. Clear? So what is the acceleration of the car and the time taken to stop? So we want to calculate acceleration of the car and the time to stop. Clear? So firstly we will use this formulation, v square minus u square is equal to 2as, because v is given, u भी बच्चों हमें दिया हुआ है, and s is also given, and we can easily find out the value of e, ठीक है। So what we have, v is what? This is u 0 square minus u is what? This is 30 square and 2 into s is how much? 100 into e. Clear? So what is this? This is minus 900 is equal to 200e, and a is what? This is minus 900 divided by 200. This will get cancelled. So a is what? This is minus 4.5 meter per second square. So we have calculated what is the acceleration. This is minus 4.5 meter per second square, and the acceleration is how much? This is negative. It means it is also called as a retardation. Clear? Now we will find out the time to stop. So for the timing we can use the simple formulation, v is equal to u plus at. V is what? 0 minus this is 30, which is equal to a into t, and t is what that we have to find out. This is minus 30 by a, this is minus 30 by e. A is what? This is minus 4.5. Clear? So now we will solve this expression.
So what is the time? Time is negative negative students cancel हो जाएगा. This is 30 by 45 into 10. Clear? So this will cancel at 5. This is 9. This is 2. This is 3. This is 10. So time is what? 20 by 3, which is 6.66 second. Clear? So this is our second answer, means the time from the point A to the point B is how much? 6.66 second. Now we will solve the second numerical. So what we have given, a car travels a distance of 2 meter in 2 seconds and 2.2 meter in next 4 seconds. And we want to calculate the velocity of the car after 7 seconds, means we want to calculate the velocity after 7 seconds. Clear? So what they have given, suppose object starts from the point O and it reaches at the point A after how much time? 2 seconds. This time is 2 seconds and the distance traveled is what? This is 2 meter. Clear? And then it covers and it reaches at the point B after how much time? 4 seconds, and it covers 2.2 meter. Clear, students? We can easily find out the velocity if u plus at formulation is known. Means अगर हमें u पता हो और a पता हो, we can easily find out the velocity after 7 seconds. So firstly we will find out the value of u and value of e. Clear? So we will use here one formulation. S बच्चों क्या होता है हमारा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, 2 सेकेंड बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 मीटर. मतलब इफ टाइम इज 2 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज व्हाट? 2 मीटर. मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ. दिस इज 2 इक्वल टू u हमें नहीं पता, टाइम बच्चों 2 है हमारा, प्लस 1/2 a इंटू 2 स्क्वायर. ये बच्चों क्या बना? 2 इज इक्वल टू 2u प्लस ये 2 कैंसिल हो गया और ये बच्चा 2a एंड 2 कॉमन आ गया, u प्लस a. तो ये 2 से कैंसिल हो गया बच्चों. अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में भी चाहे कैंसिल कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बना? 2/2 इज इक्वल टू u प्लस a, मीन्स u प्लस a बच्चों हमारा कितना है? 1 है. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई, u प्लस a इज इक्वल टू 1. इसको बच्चों हम फर्स्ट नंबर इक्वेशन ले लेते हैं, बाद में यूज करेंगे. ठीक है, और उसके बाद हमें दिया है आफ्टर 4 सेकेंड्स उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 2.2 मीटर एक्स्ट्रा कर लिया. मतलब इन 6 सेकेंड्स उसने कितना कर लिया? 4.2 मीटर. मीन्स टाइम कितना है बच्चों? 6 सेकेंड एंड डिस्टेंस कितना कर लिया? 2 मीटर पहले किया, 2.2 मीटर बाद में किया. मतलब टोटल कितना कर लिया? 4.2 मीटर. क्लियर? तो फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों. s की वैल्यू है 4.2 विच इज इक्वल टू u इंटू 6 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर विच इज 36. ये कैंसिल हो गया बच्चों. दिस इज 18. तो 4.2 इज वॉट? 6u प्लस 18a, और अगर 6 में कॉमन ले बच्चों तो बन जाएगा u प्लस 3a. ठीक है, अब 6 को मैं डिवाइड कर देता हूं तो कितना बनेगा? 4.2 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू u प्लस 3a. ये कितना बना बच्चों? ये हमारा बना 4.2 डिवाइड बाई 6 विच इज 0.7 विच इज u प्लस 3a. ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई. ठीक है, तो मैं ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पे लिख लेता हूँ. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 बच्चों हमारी क्या थी? u प्लस a इज सिंपली इक्वल टू 1. ठीक है, अगर बच्चों मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? दिस नेगेटिव साइन आ जाएगा सभी के आगे. सो दिस इज 0.3 माइनस 1, तो ये बचेगा बच्चों 0.3 नेगेटिव में. ठीक है, और ये वाला u बच्चों कैंसिल हो जाएगा. ये आपने 10th में सभी क्वेश्चंस किए होंगे इस तरह से. 3a माइनस a, दिस इज व्हाट? दिस इज 2a. तो बच्चों हमारे पास क्या आया? 2a इज व्हाट? दिस इज माइनस 0.3. तो a बच्चों हमारा कितना आया? माइनस
3/2 मीन्स ए हमारा कितना आया -0.15। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों -0.15 और इसके डायमेंशंस और यूनिट्स क्या है बच्चों, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यू हमें अब कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें ए तो पता चल गया। हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बच्चों, ए थी u प्लस ए सिंपली इक्वल टू 1, मतलब u इज व्हाट, दिस इज 1 माइनस ए, 1 माइनस ए हमारा कितना है -0.15, तो u हमारा बच्चों कितना बना, दिस इज 1 प्लस 0.15 विच इज 1.15 मीटर पर सेकेंड। तो u भी हमने कैलकुलेट कर लिया और a भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मैं एक बार दोनों चीजों को फिर से लिख देता हूं। u हमने कितना कैलकुलेट किया 1.15 मीटर पर सेकेंड और बच्चों हमने a कितना फाइंड आउट किया, a इज व्हाट -0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट द वेलोसिटी कितने टाइम बाद बच्चों, आफ्टर 7 seconds। सो व्हाट इज द फॉर्मुलेशन, v इज व्हाट u प्लस at एंड टाइम हमें कितना दिया है उन्होंने, u प्लस a इंटू 7। क्लियर, तो मैं वैल्यूज रखता हूं बच्चों, u हमारी कितनी है 1.15 प्लस a बच्चों है हमारी -0.15 इंटू 7। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करें, दिस इज व्हाट 1.15, दिस इज नाउ नेगेटिव साइन, 0.15 इंटू 7। ठीक है, ये कितना बनेगा, दिस इज 1.05, तो इसका डिफरेंस बच्चों ये कितना आया, दिस इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा बच्चों आंसर क्या आ गया, आफ्टर 7 seconds आंसर इज 0.1 मीटर पर सेकेंड is the velocity after 7 seconds. Clear students, now we have done 2 numericals. Next we will find out the distance traveled in nth seconds. Clear? So वो भी करते हैं बच्चों। Students, now we will find out the distance traveled in nth second. So what is the meaning for this distance traveled in nth second? Suppose we have an object starts its motion from the point O. Let the time here is 0. Suppose it reaches at the point A after the time n minus 1 seconds, and after n seconds suppose it reaches at the point B. Clear? If we represent Sn is the distance Sn minus 1 is the distance traveled by the object in n minus 1 seconds, then we represent Sn is the distance traveled by the object in n seconds. Then what is the meaning for Snth? It is the distance traveled by the object in nth second. So this distance is from the point A to the point B. ठीक है, so what is this? This is Snth, and it is very much clear from the diagram that Snth is simply equal to OB minus OA. This is OB minus OA, and what is OB? OB is Sn means distance traveled in n seconds, minus Sn minus 1 means the distance traveled in n minus 1 seconds. Clear? So we will put the values of this Sn and Sn minus 1 and we will find out the expression for Snth. And also we know that S is what? This is ut plus half at square. Clear? So now what we will do? Firstly we will take t is how much? This is n minus 1. So the distance traveled is how much? Sn minus 1. तो हम इसमें इसकी वैल्यूज रख देंगे। Sn minus 1 बच्चों क्या आएगा? This is u into n minus 1 plus half a n minus 1 square। मतलब ऑब्जेक्ट ने n minus 1 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब टाइम की वैल्यू कितनी होगी n minus 1। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा आ गया नंबर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे,
अगर हम ले लें इफ t इज n, मतलब n सेकेंड्स ले लें, तो हमारा डिस्टेंस बच्चों क्या बन जाएगा Sn। अगर ये डिस्टेंस हमारा Sn बन जाएगा, तो अगर मैं इस फॉर्मूलेशन में वैल्यू रखूं तो Sn बच्चों हमारा क्या आएगा, दिस इज u इंटू n प्लस हाफ e n स्क्वायर, and this is what, this is equation number 2. Clear? So now we will put the values in the definition of Snth. Snth बच्चों हमारा क्या है, this is equal to Sn minus 1. तो Sn की वैल्यू हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2 से और Sn minus 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, तो ये हमारा कितना बना, u इंटू n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस बच्चों हम ये वाली वैल्यू रख देते हैं, दिस इज व्हाट u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ ए n माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा Sn तो बच्चों क्या बना, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा u वाला फैक्टर है, इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं, दूसरे फैक्टर को अलग से सॉल्व करेंगे। तो पहला फैक्टर हमारा आया un माइनस un माइनस 1। ठीक है, और सेकेंड फैक्टर बच्चों है उसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 कॉमन है, a कॉमन है, सो दिस इज 1/2 a इंटू n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 द स्क्वायर। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या बनेगा। सो Snth is, this is un माइनस un प्लस u। ठीक है, ये नेगेटिव है तो पहली टर्म नेगेटिव हो जाएगी और दूसरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, प्लस 1/2 e इंटू सेकेंड टर्म बच्चों हमारी n स्क्वायर। अब इसको बच्चों हम खोल देंगे, दिस इज व्हाट a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, दिस इज व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बट आगे बच्चों हमारे पास क्या है, आगे नेगेटिव साइन है तो सभी जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। un से कैंसिल हो जाएगा, तो Sn क्या बना बच्चों, दिस इज सिंपली u प्लस a/2 और यहाँ पे ये n स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो जाएगा एंड द फैक्टर इज 2n माइनस 1। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, दिस इज द फॉर्मुलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अगर बच्चों आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, थैंक यू।